Hello, my dear students. I welcome you all in my class Learn English with Bhavna Mishra Pandey. Today we will do question answers of chapter 1, The Tiger King, written by Ramaswamy Iyer Krishnamurthy under the pen name Kalki. In the previous video, we already have done the detailed analysis of this chapter. So let's start. So, question 1 is, who is the Tiger King? Why does he get that name? So, Jalani Jungjung Bahadur, the king of Pratibandhapuram, is known as the Tiger King. 10 days after his birth, a renowned astrologer, renowned means famous astrologer, prophesied means predicted. So, what did he predicted? That means Bhavishyavani kari. What Bhavishyavani was there? That his death comes from the tiger. कि वो किससे मरेगा? By a tiger. After he became the king of Pratibandhapuram and got to know of the prediction, जब वो राजा बन गया, when he came to the throne of Pratibandhapuram, he came to know about the prediction of his death. He went on a tiger hunt. What did he do? He started killing the tigers. He killed about 70 tigers within 10 years. So within 10 years, 10 सालों में, only within 10 years, he killed 70. The number reached 70. He was so caught up with reaching his target of killing 100 tigers, means he was keen towards, so much attentive towards killing his target of 100 tigers to disprove the prophecy. What prophecy was made? That he will be killed through 100th tiger. So he was trying his best to complete that because he wanted to disprove. वो उस prophecy को झुठलाना चाहता था that all other matters took a back seat. तो उसके लिए जितने भी matters थे, जो भी कोई बातें थी, वो सारे के सारे back seat पे थे, यानी कि वो सारे secondary थे. Main target was killing 100 tigers. This was now he got to be known as the Tiger King. And इन सारे reasons की वजह से he got to be known as the Tiger King. Let's see next question. That is, why did the royal infant grow up to be? रॉयल इन्फेंट जो था कौन? महाराजा. वो क्या करने के लिए बड़ा हो रहा था? The royal infant grew up to be king of Pratibandhapuram, who was obsessed with the idea of killing 100 tigers. उसके मन में एक जिद थी, एक चीज पे वो अड़ा हुआ था. He was headstrong for killing 100 tigers. He wanted to do so to disprove the prophecy. वो ऐसा क्यों करना चाहता था? क्यों? ताकि वो disprove कर सके वो जो prophecy, वो जो prediction उसके लिए की गई है, which said that his death would come from the 100th tiger. This made him kill all the tigers of Pratibandhapuram. और इस जिद की वजह से, इस डिटर्मिनेशन की वजह से, प्रतिबंधपुरम में जितने भी टाइगर्स थे, he killed all those. He even married for the sake of his ambition. उसकी इसी ambition की वजह से उसने क्या किया? He married a girl. He came to be known as the Tiger King. और इसी वजह से वो Tiger King बना. Next question, let's see. What will the Maharaja do to find the required number of tigers to kill? So what did he do? उसने क्या क्या काम किए जिसकी वजह से वो 100 टाइगर्स के अपने टारगेट को किल कर सके? To get the required number of tigers to kill, the Maharaja asked his diwan to find a suitable girl for him to marry, because in his kingdom टाइगर्स का जो नंबर था वो बहुत कम हो गया था, खत्म हो गया था एक तरीके से. A suitable girl for matrimonial alliance would be one who would not only come from a royal family but also belong to a state with a large tiger population. So now what was the condition for that girl? That girl should be from a royal family, and one more thing was there must be large number of tiger population must be there in that kingdom. As Pratibandhapuram had no more tigers left, a province that belonged to his father-in-law would certainly provide him with an opportunity to kill more tigers and reach his aim of killing 100 tigers. So that's why only he was marrying with that girl, because जब भी वो अपने फादर इन लॉ के वहाँ जाता था, what was he doing?
He was getting the opportunity to kill tigers, and every time he was killing 5 to 7 tigers. Okay. So, next question. Why did the Maharaja decide to get married? Why did he decided? He decided the Maharaja decided to get married as he had killed all 70 tigers in his kingdom. Now he was short of tigers in his kingdom, so he wanted the freedom to shoot the remaining 30 tigers in a kingdom or state with a large tiger population to negate the prophecy. Negate the prophecy means उस prophecy को नकारने के लिए और freely कहीं पे वो शूट कर सके टाइगर्स को, इसलिए उसने डिसाइड किया कि he will marry. So for that purpose he decided to get married. Now let's see next question. Why did the Maharaja have to pay a bill of 3 lakh rupees to the British jewelers? So उसको महाराजा को क्यों पे करना पड़ा 3 lakh rupees का bill? So the reason was when the Maharaja refused a British officer to conduct a tiger hunt. As you know, there was British जो गवर्नमेंट थी उनका राज था. ओके. So when a British officer came there for a tiger hunt, he refused. और उसको अपना जो kingdom था वो बचाना था. That his kingdom was at the stake of danger. उसको बचाने के लिए he risked losing his kingdom क्योंकि वो खतरे में था उसका जो kingdom था. So he sent 50 diamond rings. उसने 50 डायमंड की जो रिंग्स थी और उनकी कॉस्ट थी दैट वाज कॉस्टिंग 3 लाख रुपीज टू हिज वाइफ टू सेलेक्ट वन, बट शी केप्ट देम ऑल. उसने वो सारी की सारी रिंग्स जो 50 डायमंड रिंग्स थी उस ऑफिसर ब्रिटिश ऑफिसर की वाइफ के लिए सेंड की सो दैट शी कुड सेलेक्ट एनी वन. बट व्हाट डिड शी डू? शी सेलेक्टेड ऑल दोज एंड दोज वर्थ रुपीज 3 लाख. इसलिए उसको वो 3 लाख रुपीस का बिल जो था वो पे करना पड़ा. लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज which problem did the Maharaja face when he had killed 70 tigers? How did he solve it? So what was the problem he faced after killing 70 tigers within 10 years, and what did he do to solve that? So when the Maharaja had killed 70 tigers, there was no more tiger left to be killed in his kingdom. He solved this problem by marrying a girl from a state which had sufficient tiger to be killed. So what did he do to solve that problem? He married a girl जहाँ पे बहुत सारे नंबर में sufficient नंबर में टाइगर्स हो. उस किंगडम की जो गर्ल थी वहाँ से उसने मैरिंग रिलेशनशिप एस्टैब्लिश किया. So let's see next question. When did the Maharaja decide to double the land tax for a village? महाराजा ने ऐसा डिसीजन क्यों लिया कि उसको टैक्सेस जो थे किसी विलेज पे वो जस्ट डबल करने पड़े थे? सो द महाराजा डिसाइडेड टू डबल द लैंड टैक्स फॉर अ विलेज इन एंगर बिकॉज ही वॉज एंग्री when the villagers were not able to locate the 100th tiger which he could not kill and prove the astrologer's prophecy wrong. क्योंकि विलेजर्स जो थे वो 100th टाइगर का इंतज़ाम नहीं कर पा रहे थे because he killed 99 tigers. Now the last one 100th tiger, that was his main target, that was remaining. So what did he do? He wanted to kill that 100th one, but वो मिल नहीं रहा था. That's why in anger what did he do? He doubled the land tax of the villagers. Let's see next question. Why was the Maharaja once in danger of losing his kingdom? तो महाराजा अपने ऐसा कब हो गया, ऐसा क्यों हुआ था कि उसको अपना राज्य खोना ही पड़ जाता? क्या हुआ था ऐसा? The Maharaja was once in danger of losing his kingdom when he did not allow a British officer to shoot a tiger, because actually he was short of tigers in his own kingdom and he wanted to disprove that prophecy. एक तो उसके खुद के किंगडम में जो टाइगर्स थे उनकी कमी थी,
ही वॉज शॉर्ट ऑफ नंबर. आफ्टर दैट वो प्रोफेसी को क्या करना चाहता था, डिस्प्रूव करना चाहता था. एंड इन सब के बावजूद एक और ब्रिटिश ऑफिसर आके उसने क्या अपनी इच्छा जताई. ही सेड दैट ही वांटेड टू शूट अ टाइगर और इवन टेक अ पिक्चर विद द डेड टाइगर. सो दिस वाज द थिंग, बट ही रिफ्यूज्ड. लेकिन उसने मना कर दिया क्योंकि उसको अपनी जान की परवाह थी. दैट्स वाई उस टाइम पे महाराजा जो था वो एट द स्टेक ऑफ डेंजर, कि अब उस कगार पे था कि उसका राज्य कम से कम वो खो ही जाता. इसलिए दस हिज किंगडम वॉज इन डेंजर. इसलिए उसका जो राज्य था वो क्या था, डेंजर, खतरे में था. लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन. दैट इज when he was only 10 days old, a prediction was made about the future of the Tiger King. What was ironic about it? So first of all let me tell you what is an irony. Actually irony क्या होता है, जो हम जिसका हम सोचें कि इसका आंसर, इसका रिजल्ट ये निकलेगा जबकि उसका रिजल्ट उससे बहुत ही डिफरेंट होता है. दैट इज आयरनी. So what does the examiner asks here? He asks that a prediction was made about the future of Tiger King. एक भविष्यवाणी की गई थी 10 days old जो बच्चा था उसके फ्यूचर के लिए. तो इसमें क्या आयरनिक वाली क्या बात है? A prediction stating a tiger would be the cause of the tiger's death. प्रिडिक्शन क्या कह रही थी, क्या स्टेट कर रही थी, क्या बता रही थी? दैट अ टाइगर वुड बी द कॉज ऑफ द टाइगर किंग. टाइगर किंग की डेथ का रीजन क्या होगा? टाइगर होगा. वॉज मेड वेन ही वॉज ओनली 10 days old. अब एक छोटे से बच्चे के लिए टाइगर की बात की जाए तो वो कैसी है? फेरोशियस टाइगर को देख के हमारे मन में कैसी एक इमेज आती है? बहुत ज़्यादा रोरिंग टाइगर. तो ऑल्दो द टाइगर किंग किल्ड ऑल 100 टाइगर्स टू प्रूव द प्रिडिक्शन रॉन्ग. जबकि हुआ क्या, उसने क्या किया? द टाइगर किंग किल्ड ऑल द 100 टाइगर्स. उसने सारे के सारे 100 टाइगर्स को मार दिया ताकि वो प्रूव कर सके, सो दैट ही कैन प्रूव द प्रिडिक्शन रॉन्ग. इट वॉज आयरनिक दैट ही वॉज किल्ड बाय अ wound cause while playing with a wooden tiger. Actually he was killed, जबकि होना क्या चाहिए था, उसको टाइगर किंग को मार दिया जाना चाहिए था बाय अ टाइगर, एक जीवित टाइगर के द्वारा. लेकिन उसकी डेथ किससे हुई? वाइल प्लेइंग विद अ वुडन टाइगर. जब वो एक वुडन टाइगर के साथ खेल रहा था, दैट कॉज्ड अ वुंड. उसने उसके स्किन पे, उसके हैंड पे एक वुंड, एक घाव क्रिएट किया एंड बिकॉज ऑफ दैट ही वॉज डाइड. सो ये आयरनिक सिचुएशन यहाँ पे बताई गई है. लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन. दैट इज how will the Maharaja prepare himself for the 100th tiger which was supposed to decide his fate? तो उसने अपने आप को कैसे प्रिपेयर किया उस 100th टाइगर के लिए जिसने उसका फेट डिसाइड कर रखा था? द महाराजा वांटेड टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल व्हाइल डीलिंग विद द लास्ट 100 टाइगर. लास्ट जो 100th टाइगर था उसके लिए वो बहुत बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली केयरफुल, उस मैटर की डीलिंग में वो कोई भी मिस्टेक नहीं करना चाहता था. ही डिडंट वांट टू कमिट एनी मिस्टेक which was supposed to be the reason of his death, but obvious उसको ये करना ही था. On encountering the 100th one, he took a careful aim. उसने बहुत ध्यानपूर्वक attentively he aimed at the tiger and shot it. When it fell in a crumpled heap, एक ढेर के रूप में जब वो नीचे गिर गया, he was overcome with joy and left the place hastily. Hastily means fastly. जल्दी से उसने क्या किया, वो प्लेस छोड़ा because he was overcome with joy. वो खुशी के मारे फूला नहीं समा रहा था. So this was done by the Maharaja for that 100th tiger. Now let's see what's there in the next question. It's long answer type question, students. So let's see what's here. The story is a satire on the conceit of those in power. Satire means क्या होता है? When we mock at somebody. Okay? Mock मतलब किसी का मजाक उड़ाना, humor create करना. That is satire. Commenting way में you can say, मजाक उड़ाते हुए. How does the author employ the literary device of dramatic irony in the story? तो dramatic irony को कैसे जो ऑथर है वो यहाँ पे अप्लाई करता है. So let's see.
And the meaning of conceit is also given. Conceit means an extremely favorable and high opinion of one's own abilities and worth, while satire refers to the to use of irony, humor, exaggeration. ह्यूमर मतलब वही मोक एट समबडी, एक्सजरेशन मतलब किसी को बढ़ा चढ़ा के कहना, टू रिडिकल मीन्स वही उपहास करना किसी का, टू एक्सपोज एंड क्रिटिसाइज स्टुपिडिटी, किसी को एक्सपोज करना, उसको क्रिटिसाइज करना उसकी स्टुपिडिटी को. एंड वाइसेस ऑफ पर्सन, वाइसेस मीन्स बुराइयां किसी पर्सन की, इन अ पर्टिकुलर कॉन्स्टेंट और कॉन्टेक्स्ट और सिचुएशन, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में किसी की स्टुपिडिटी को एक्सपोज करना, किसी की वाइसेस यानी किसी की बुराइयों को एक्सपोज करना. हाउ, किस उस पे कैसे अटैक करते हुए, बाय ह्यूमर, बाय मोकिंग एट दैट पर्सन, और बाय एग्जेजरेटिंग समथिंग, उसको एग्जेजरेट करके. तो यहाँ पे जो एग्जामिनर है उसने क्या किया है, जो ऑथर है उसने क्या किया है, ऑथर ने उसको दोज इन पावर, मतलब जो पर्सन जो किंग है वो किस में है, वो रूलिंग किंग है, वो पावर में है, तो उसकी एबिलिटीज को मोक करते हुए यहाँ पे उसको एक्सपोज किया है. ओके. और कंसीट का मीन्स होता है एक्सट्रीमली फेवरेबल एंड हाई ओपिनियन ऑफ हिमसेल्फ. वो अपने लिए बहुत ज़्यादा हाई ओपिनियन रखता था, अपने आप को बहुत ज़्यादा समझता था, तो उसके लिए यहाँ पे क्या कहा है ऑथर ने. लेट्स सी. द स्टोरी इज अ सटायर ऑन द कंसीट ऑफ दोज इन पावर. जो पीपल पावर में हैं उनके लिए यहाँ पे उनको मोक किया गया है, उनका मजाक उड़ाया गया है. द टाइगर इज नॉन टू बी एन एक्सट्रीमली कंसीटेड पर्सन राइट फ्रॉम द बिगनिंग. स्टार्टिंग से ही हम क्या देख रहे हैं, शुरुआत से ही हम क्या देख रहे हैं, उसको बहुत ज़्यादा एग्जेजरेट करके बताया गया है. व्हेन, जब वो 10 days ओल्ड था, एज अ 10 days ओल्ड इन्फेंट, जब वो 10 days ओल्ड था, ही प्रोनाउंस्ड द वर्ड, उसने वर्ड्स बोले थे कुछ, क्या, जबकि लेट टाइगर्स बिवेयर, कि टाइगर्स तुम सावधान हो जाओ, तुमको सावधान होने की ज़रूरत है. जबकि होना क्या चाहिए था, एक 10 days ओल्ड चाइल्ड को डरना चाहिए था टाइगर का नाम सुन के, जबकि वैसा नहीं हुआ. तो व्हाट इज हियर, एग्जेजरेटेड समथिंग, बढ़ा चढ़ा के कहा गया है. बाय चैलेंजिंग द एस्ट्रोलॉजर्स प्रिडिक्शन, उसने क्या बोला, एस्ट्रोलॉजर ने जो प्रिडिक्शन की थी, जो भविष्यवाणी की थी, जो प्रोफेसी की थी, उसको उसने चैलेंज किया टाइगर किंग ने, कि टाइगर्स तुम सावधान हो जाओ, आई एम कमिंग फॉर योर डेथ. ही ऑल्सो challenges his death, उसने खुद की डेथ को भी चैलेंज किया. मोर ओवर, और उसने क्या किया, किलिंग 70 टाइगर्स विद इन अ पीरियड ऑफ 10 years. व्हेन ही केम टू द थ्रॉन, उसने a short period of 10 years he killed 70 tigers and bringing the entire species close to extinction. और वो जो पूरी जाति थी, किसकी, पूरी की पूरी जाति थी टाइगर्स की, उसको बिल्कुल एक्सटिंक्शन, खत्म होने के कगार तक ला दिया था. एंड उसने क्या किया, मैरिंग फॉर कन्वीनियंस ऑफ किलिंग मोर टाइगर्स. वो जो 30 टाइगर्स का जो टारगेट था, टू हिट दैट टारगेट, व्हाट डिड ही डू, ही मैरिड अ गर्ल, एक्सरसाइजिंग हिज अथॉरिटी टू पनिश. एंड व्हाट डिड ही डू, ही यूज्ड हिज पावर, ही डबल्ड द टैक्स ऑन लैंड according to his whims and fancies. whims means उसके मन में जो भी कोई whims थी, जो भी उसके मन में, मतलब अपनी पूरी फैंसीज, अपनी इमेजिनेशन, अपनी एम्बिशंस को पूरा करने के लिए. तो what did he do, flaunting his power and richness in sending about, and उसने show off किया. flaunting means show off his power and richness. how he showed this, he showed off this how, by sending about 50 rings to the British officer's lady, or paying a bill of 3 lakh rupees, having a temper that would make other people lose their jobs. और इसके लिए उसने क्या किया, और अपनी एम्बिशन को पूरा करने के लिए what did he do, he would make other people lose their job. और बहुत सारे people को उसने क्या किया, धमकाया कि उनकी जॉब्स जो हैं वो चली जाएंगी अगर वो जो किंग की जो इच्छा है उसको पूरा नहीं करेगा. मीन्स व्हाट वाज द एम्बिशन ऑफ द किंग, that 100th tiger, because 99 were completed, now he wanted that 100th one. Or even life etc, or are all part of this conceit. यानी कि अपने आप को बहुत ज़्यादा दिखाने के चक्कर में उसने इतनी सारी चीज़ें कर दी. He does nothing for the sake of his people, and
he was continuously showing off his power, money, his status, but he did nothing for the sake of his people. अपने people के लिए उसने कुछ नहीं किया. He didn't use his capacity for the sake of his people, for the benefit, for the welfare of his people. All these has been highlighted in the story using humor, irony and exaggeration. I have already told you about this. Humor मतलब मजाक उड़ाना, irony मतलब जो हम सोचें वैसा उसका रिजल्ट उसका वैसा ना होना, डिफरेंट रिजल्ट होना. एक्सेजरेशन मीन्स बढ़ा चढ़ा के किसी चीज को बोलना. सो as we know that death is an inevitable phenomenon associated to life itself, we know that nobody can escape through the hands of icy hands of death, we can say, है ना. Challenging death on the basis of prediction by astrologer is as good as wasted effort. So what did he do? He challenged his death, which was prophesied by an astrologer. He wanted to disprove that, and it was merely a wasted effort, जो कि एक बिल्कुल निरर्थक प्रयास था. Even after actually what is written in our destiny, हमारी डेस्टिनी में वो आ ही जाता है, वो हो ही जाता है, चाहे हम उसके लिए कुछ भी कर लें. ओके. Even after the monumental task of killing 99 tigers, उसने वो टास्क भी कंप्लीट कर दिया. कौन सा? 99 टाइगर्स वाला. The 100th tiger escaped being shot by king's gun. लेकिन when he was inches near, जब वो बिल्कुल नियर था अपने टारगेट के, when he was inches near to his target, what happened? He missed his aim. His gun missed the aim. Unaware of this, but he was not aware of this, that what's happening, he dies merely because of a tiny little wooden tiger. And he was, irony lies here, जबकि उसको मरना किससे चाहिए था? 100th टाइगर से. ओके. लेकिन हुआ क्या? 100th टाइगर जो था वो तो उसके खुद के शॉट से मरा नहीं. एक्चुअली दैट टाइगर वॉज फेंटेड एंड किल्ड बाय द अदर, जो सिपाही थे उसके साथ और वो शूटर लेके गया था. दैट टाइगर वॉज किल्ड बाय दोज पीपल. एंड वो किससे मरा? टाइगर किंग किससे मरा? टाइनी वुडन टाइगर. एंड नॉट बाय एनी फेरोशियस लिविंग क्रीचर लाइक टाइगर. वो फेरोशियस यानी कि डरावना दिखने वाला टेरराइजिंग टाइगर से, एक लिविंग टाइगर से नहीं मरा. Thus the dramatic irony surfaces strongly at the end of the story. स्टोरी के एंड पे हमको क्या नजर आता है? ड्रामेटिक आयरनी नजर आती है, दैट द किंग वॉज किल्ड बाय वुडन टाइगर. सो लेट्स सी व्हाट्स देयर इन द नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन. व्हाट इज द ऑथर्स इनडायरेक्ट कमेंट on subjecting innocent animals to the willfulness of human beings. So here the author का यहाँ पे क्या है, एक indirect comment कर रखा है कि हम अपनी इच्छा के लिए, ह्यूमन बींग्स जो है वो अपनी इच्छा के लिए क्या करते हैं? इनोसेंट एनिमल्स को अपना शिकार बना लेते हैं. तो ऐसे वो कैसे इनडायरेक्टली कमेंट कर रहा है, दैट द ऑथर इज आस्किंग टू अस. सो द ऑथर यूजेस satire in this story to talk about the indiscriminate killing of tigers. Without any indiscrimination means बिना किसी भेदभाव के उसने क्या किया? टाइगर्स को कंटिन्यूसली मारता चला गया. The entire species of tigers had become extinct at the state of Pratibandhapuram and that of his wife's native state by the time the tiger himself dies. So उसने क्या किया? अपने खुद के स्टेट में जब नंबर शॉर्ट हो गया तो उसने क्या किया? वाइफ के नेटिव स्टेट में जितने भी टाइगर्स थे उनको अपनी इच्छा अनुसार अपने खुद के मतलब के लिए मारना शुरू कर दिया. वॉट इज पॉइंटेड इन अ सटल मैनर मतलब द ऑथर है दैट इज पॉइंटिंग आउट, इशारा कर रहा है इन अ सटल मैनर मीन्स इन अ विच इज़ नॉट ऑब्वियस मतलब विच इज़ नॉट क्लियर, यू कैन से. डायरेक्टली नहीं वो कह रहा है, इज दैट दीज किलिंग आर अ रिजल्ट ऑफ मियर विम्स एंड फैंसीज. तो ये सारी की सारी जो उसने मारा, सबको वो किया, वो क्या थी? उसकी सनक थी. विम्स मतलब अपनी सनक, अपनी एम्बिशन, फॉल्स एम्बिशन को पूरा करने के लिए, अपनी फैंसीज, अपनी इमेजिनेशन, अपनी एम्बिशंस को पूरा करने के लिए उसने ही डिड ऑल दीज थिंग्स. दे डू नॉट हैव एनी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन
जबकि इन चीज़ों का कोई, अगर हम चाहें तो कोई रीजनेबल, कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है एट द फेस ऑफ द इनएविटेबल स्टेटस ऑफ डेथ। जबकि डेथ जो क्या है, दैट इज इनएविटेबल, वी कांट एस्केप थ्रू, बट he did, he kept on killing all those tigers for his ambition. Moreover, the silence of the death of tigers itself draws a strong correlation. जबकि साइलेंटली जो टाइगर्स मरते जा रहे थे, वो क्या कर रहे थे, एक रिलेशन बना रहे थे, किसका, बिटवीन द लाइफ ऑफ द किंग एंड दैट ऑफ द 99 टाइगर्स किल्ड बाय हिम। एक्चुअली चिल्ड्रन, वन थिंग वी कैन सी हियर, अगर वो, उसकी डेथ किससे आनी थी, 100th टाइगर से, बट अगर वो 100th टाइगर 99 टाइगर्स को मारता ही नहीं तो वो 100th कहाँ से आता। सो ही हिमसेल्फ कॉल्ड हिज डेथ, उसने खुद अपने आप को अपनी डेथ के सामने लेकर के आया था वो, बाय किलिंग दोज 100 टाइगर्स। और कोरिलेशन था उन 99 टाइगर्स को मारने के पीछे, क्या, डेस्टिनी का, कि अगर वो 99 को मारेगा तभी वो 100 तक पहुंचेगा। और अपनी विम के लिए, अपनी फॉल्स एम्बिशन के लिए, अपने फॉल्स स्टेटस के लिए उसने ये सब किया। लेट्स सी व्हाट्स देयर इन द नेक्स्ट। Besides, no second thought was ever given while killing the tiger. और जब भी वो टाइगर को किल करता, कोई उसके मन में सेकंड थॉट कुछ भी नहीं होती थी। हिज टारगेट मीन्स, वो अपने अटेंटिवली अपने टारगेट की तरफ ध्यान रखता था। देयर इज ऑल्सो एन इम्प्लिसिट सजेशन, इम्प्लिसिट मीन्स विच इज नॉट डायरेक्टली एक्सप्रेस्ड। There is also an implicit suggestion of killings for preserving the vain glory of human in the British officer's request for a photograph with a dead tiger. एंड उसने क्या, अपनी वेन ग्लोरी, अपनी फॉल्स ग्लोरी के लिए क्या किया था, ब्रिटिश ऑफिसर की जो रिक्वेस्ट थी उसको भी मना कर दिया था, ही रिफ्यूज्ड फॉर दैट। एंड अपने फॉल्स प्रेस्टीज के लिए उसने 3 लाख रुपीस तक पे कर दिए थे। इट इज़ एज इफ दीज एनिमल्स एग्जिस्टेंस इज एट स्टेक फॉर मोर देन वन रीजन एंड फॉर नो फॉल्ट ऑफ देयर ओन। जबकि जो जितने भी एनिमल्स को उसने किल किया, ऑल दोज 99 टाइगर्स, उनका कोई भी फॉल्ट नहीं था उसमें, उनका एग्जिस्टेंस इज एट स्टेक, उनका एग्जिस्टेंस यानी कि उनका अस्तित्व खतरे में था, बिना किसी रीजन के दे वेंट टू देयर डेथ, अपनी डेथ के पास चले गए थे वो। द एब्सर्डिटी हाईलाइटेड इन द किलिंग्स बाय द ऑथर, एब्सर्डिटी मतलब क्या, अजीब चीज़ यहाँ पे दिखाई गई है, क्या हाईलाइट किया गया है बाय द ऑथर, ऑल्सो मेक्स द रीडर्स वंडर इफ दीज एनिमल्स डिजर्व मोर सिक्योरिटी देन ह्यूमन बींग्स। तो ऑथर वॉन्ट्स टू से दैट ये जो बेचारे इनोसेंट एनिमल्स हैं, दे डिजर्व मोर सिक्योरिटी बिकॉज वी द ह्यूमंस, हमारे पास क्या है, सारे के सारे मीन्स वी हैव, ऑल द रिसोर्सेज वी हैव, बट दीज एनिमल्स दे डोंट हैव एनीथिंग फॉर देयर सिक्योरिटी। ओके, सो students, keep reading. Thank you so much. We will be back in the next video. Stay connected. Thank you.